Last lecture, we were continuous with the modifications of the adventitious roots that help in the mechanical support. And one, that is a root that we discussed last time, that was the prop roots. Now the second, they are the stilt roots. Stilt roots, they differ from the prop roots. They originate from the lower nodes of the stem. Lower nodes of the stem. And they are oblique in position. Whereas the prop roots here you find, they were vertical in position and they originate from the horizontal branches of the tree. Straight roots in contrast, they originate from the lower nodes of the stem and they grow obliquely, and obviously they penetrate in the soil, and when they penetrate in the soil, they provide the additional support as well as they help in the absorption of the water and the mineral salts. But their main function is, that is, they provide the mechanical support, additional support that is given to the plant, because you find in the plants like maize, sugarcane, sorghum. sorghum को हम चरी बोलते हैं. Maize is sweet corn, maki, sugarcane, you are familiar. So in this case you find the stem is long and cylinder, comparatively thin. So obviously to provide it the mechanical support, additional, that is the roots are given off, and these roots they just act like the ropes of a tent. जैसे एक टेंट को बांधने के लिए चारों तरफ से हम रोप से बांध देते हैं उसको, just to provide to the support to the tent. Same is the case here. Just to give the support to the main stem, additional roots are given out. So they just act like the ropes, and they provide the mechanical support to the plant. So prop root and the stilt roots you can easily differentiate, and both they are helping in the mechanical support. Both they provide the absorption as well when they penetrate inside the soil. Now there is one more plant, that is a pandanus. इसका रेफरेंस पहले भी आया था. पैंडेनस, इसको स्क्रू पाइन बोलते हैं. स्क्रू पाइन. इसमें बताया था आपको मल्टीपल रूट्स कैप्स आर देयर, मल्टीपल रूट कैप्स. In this case, as I told you earlier, these stilt roots, they grow just from the upper, that is the part of the stem, and these stilt roots, they do not penetrate in the soil, so that's why they have the multiple root caps. Multiple root caps. Why the multiple root caps are there? Because these stilt roots, they do not penetrate in the soil. Do not penetrate. Obviously the root cap is not peeled off. New root caps they are given off every time. So multiple root caps you find in case of the pandanus or the screw pine. And certain botanists consider it, that is these pandanus, it should be considered in the category of the that is the prop roots, because here these roots, they just act like the pillar-like structure. But stilt roots, they appear in walls, they appear in clusters, and they don't appear in clusters. So that's why they don't appear in clusters, they consider it as that is a prop root. But here the stilt roots we find they appear on the lower nodes of the stem only, and in this case it just resembles with the pandanus, resembles with the stilt root. So remember, the pandanus, which is an example of the stilt roots, but here the multiple root caps are present, and these stilt roots, they are not present in walls. So prop roots and stilt roots, they can be differentiated from this point of view also. These prop roots, they appear singly, and these stilt roots appear in cluster, they appear in walls. कई बार आपने शुगर केन आपके घर में आता होगा, आपने उसके जो लोअर नोड्स पार्ट होते हैं तो वो आप खाना प्रेफर ही नहीं करते. क्यों नहीं प्रेफर करते? उसके ऊपर रूट्स बड़ी लगी होती है, चारों तरफ वर्ल्स में रूट्स निकल रही होती हैं. तो वही जो लोअर जो नोड्स पे रूट्स निकल रही होती हैं वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं. तो these stilt roots, they are also providing the mechanical support. So now the last category of the roots that provide the mechanical support, they are the climbing or the clinging roots. Climbing or clinging roots you find in so many plants in your vicinity also. आपके neighborhood में, even मैं तो कहूँगी आपके घर में भी लगा होगा, मनी प्लांट लगा होगा, तो मनी प्लांट में clinging roots होती हैं. So these clinging roots that may appear from the nodes, internodes, or both. Clinging roots
we call it as the climbing roots also, because they are present in the climber. Clinging roots, their position, they may appear from the nodes, they may appear from the internodes, or they may appear from both nodes as well as the internode. Node, इसकी बेस्ट एग्जांपल मनी प्लांट, इसका बोटेनिकल नेम है पोथोस, पोथोस मनी प्लांट. एंड वन मोर, दैट इज द बीटल, बीटल पान, पान का पत्ता जिसको बोलते हैं. तो पान में भी दैट इज आल्सो ए क्लाइंबर. तो उसमें भी जो रूट्स निकलती हैं दैट इज फ्रॉम द नोड्स. इंटरनोड्स में ये आप देखेंगे टेकोमा, ये भी येलो कलर का प्लांट होता है. जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी टेकोमा. तो टेकोमा में इंटरनोड से निकलती हैं. तो मनी प्लांट में आप देखते हैं, मनी प्लांट है चाहे पान का पत्ता है, तो यहाँ आप रूट्स निकलती यहां से निकल रही हैं, राइट. टेकोमा में कहां से निकल रही हैं, दैट इज फ्रॉम द इंटरनोड, इस पार्ट से निकलेंगी. टेकोमा में इंटरनोड से निकलेंगी, यहां से नहीं निकल के ये इंटरनोड से निकलेंगी. ईवी, इन ईवी दे ओरिजिनेट बोथ from the nodes as well as the internode. Now how they cling to the plant? How they cling to the plant? They may develop the adhesive pad-like structure. Adhesive. Adhesive का मतलब क्या है? Adhesive mean adhere कर जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं. Adhesive. They may develop the adhesive pads, or they may develop the claw or claw-like structure. Claw-like structure may be there, or some disc-like structure may be there. That is, some adhesive pad may be there, some claw-like structure may be there, or that may be disc-like structure that help them just to stick to the plant. Stick to the plant, that is, stick to the host plant where they climb. They don't get anything from the host plant. They are just meant for the climbing. अगर प्लांट में नहीं है तो आप कोई भी वहां पे स्टिक लगाएंगे तो स्टिक पे ऊपर चढ़ जाएंगे. So these climbers, they don't get anything from, that is the structure where they climb. So they are only, that is the, get the support from the plant or from the structure where they climb. So this support may be from the, that is a structure, clinging roots, that may be from the nodes, internodes, or maybe from the both nodes as well as the internode part. So clinging roots, they are meant for the support, obviously. Now the three roots we have discussed, modifications of the adventitious roots that provide the mechanical support. So that may be the prop root, that may be the straight root, or that may be the clinging roots. तो ये तीनों रूट्स तो आ गई जो मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं. पहले हमने की थी दी रूट्स दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड, वो फ्लैशी रूट्स की थी. नाउ सम अदर मॉडिफिकेशंस एज वेल, दे हैव सम एडिशनल, दैट इज द फंक्शंस. एंड नाउ द फर्स्ट वी आर टेकिंग द एपिफिटिक रूट्स. Epiphytic roots. Epiphytic roots. Before I start with the epiphytic roots, we must be concerned with the epiphyte, because it is a feature of the epiphytes. Epi mean upon, जैसे पहले बताया ना, hypogeal and epigeal. Epi word जहां भी आएगा, it means upon, above, and phytic means that is the plant. Epiphyte, क्या मतलब निकला इसका? Epiphyte, the plants growing upon the other plants. They are known as the epiphytes, right? Epiphytes, these are the plants growing upon the other plants. They are known as the epiphytes. तो ये कहते हैं कि क्यों उसके ऊपर ग्रो करते, प्लांट्स के ऊपर क्यों ग्रो करते? लेते कुछ नहीं है ये प्लांट से. Nothing is derived from the plant जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं. तो फिर ये क्या इनको पड़ी, क्या मुसीबत पड़ी कि उनके प्लांट के ऊपर जाना पड़ा इनको? इन केस ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आपने देखा जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, तो वहां पे कुछ प्लांट्स होते हैं उनको लाइट नहीं मिलती. नीचे वो अगर सॉइल पे ग्रो करेंगे, रूट सिस्टम नीचे होगा, तो ऊपर से उनको लाइट ही नहीं मिलती. इतने थिक फॉरेस्ट होते हैं. तो वो लाइट लेने के लिए ही ये जो प्लांट है किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं. पर इसका ये मतलब नहीं है कि उससे वो कुछ लेते हैं. लेना उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं है. हाँ, किसके लिए फिर रह रहे हैं उसके ऊपर? ओनली फॉर द स्पेस. तो इसलिए एपीफाइट्स का दूसरा नाम है स्पेस पैराफाइट, स्पेस पैरासाइट. पैरासाइट आपको पहले भी बताया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में था शायद आपके. पैरासाइट क्या बताया था कि वो प्लांट जो किसी और लिविंग प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं.
तो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया स्पेस पैरासाइट। तो उनसे नरिशमेंट के लिए कुछ नहीं लेते, जस्ट अपने रहने के लिए लेते हैं, रहने के लिए जगह बनाते हैं, उनसे कुछ भी नहीं लेते। वाटर, मिनरल्स, फूड, कुछ भी प्लांट के अंदर से वो कुछ नहीं लेते। यही समझ लो कि आपके घर का एक बाहर का कमरा है छोटा सा, वो अंदर खुलता भी नहीं है, बाहर ही उसका गेट है, तो आपने कोई भी वहां पे आके रह लेता है, आपको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके घर के बाहर के कमरे में रह रहा है, अंदर से उनको कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा ही इन प्लांट्स का कुछ हाल है कि वो भी प्लांट से कुछ नहीं लेते, हाँ उनसे नरिशमेंट नहीं लेते, वाटर नहीं लेते, पर फिर भी उनके ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्पेस पैरासाइट्स। तो फिर ये कैसे ग्रो करते हैं, ये देखिए कि ये होस्ट प्लांट है, ये स्टेम है, होस्ट की स्टेम है, ये होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर रह रहे हैं। इन्हीं प्लांट्स के ऊपर इन्होंने अपना डेरा बना लिया। ये देखिए ये लीव्स हैं, इन्होंने अपनी ये यहाँ पे ऐसे रूट्स भी दिए हैं, पर ये रूट्स आपको मालूम है एक इनकी होती है फिक्सिंग रूट्स। तो फिक्स में किसमें करते हैं, फिक्सिंग रूट्स आते हैं। तो जैसे होते हैं ना क्रिवाइसिस, पॉकेट्स, क्रैक्स होते हैं प्लांट के अंदर, उसकी स्टेम के अंदर क्रैक्स होते हैं, तो क्रैक में थोड़ी सी डस्ट सी जम जाती है, वहीं ये अपना डेरा जमाते हैं, अपना रूट्स भी वहीं देते हैं, फिक्सिंग रूट्स भी वहीं देते हैं, और एक रूट्स होती है एब्जॉर्बिंग रूट्स। तो एब्जॉर्बिंग रूट्स कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एब्जॉर्बिंग रूट्स। तो ये कहां से वाटर मिनरल सॉल्ट्स कहां से ले रहे हैं, जो डस्ट वहां पे इसके ऊपर क्रैक्स में जमी हुई है, उसी डस्ट में से अपने वाटर मिनरल सॉल्ट्स भी ले लेते हैं। तो फिक्सिंग रूट्स दे डोंट डिराइव एनीथिंग, प्लांट के अंदर भी थोड़ी सी बाहर सरफेस पे चली जाती हैं फिक्सिंग रूट्स, पर दे आर नॉट मेंट टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड द मिनरल सॉल्ट्स, लेते कुछ नहीं है, दे आर ओनली मेंट फॉर द फिक्सेशन। एब्जॉर्बिंग रूट्स है, इन्होंने एब्जॉर्ब करना है, पर कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वही जो क्रैक्स में डस्ट जम गई है ना, क्रैक्स में डस्ट जमी है, उसी डस्ट के अंदर उनके न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वहीं से वो ले लेते हैं, वहीं से मॉइस्चर ले लेते हैं, पर उतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। कुछ रूट्स वो देते हैं, एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, उनको बोल देते हैं ये एपिफिटिक रूट्स हैं, एपिफिटिक रूट्स they are freely hanging in the air, epiphytic roots, they are freely hanging in the air, epiphytic roots freely hang कर रही होती हैं हवा में, freely hanging in the air, and these epiphytic roots they have got a special tissue, उस टिश्यू का नाम है विलामेन। Epiphytic roots they have got a special tissue known as the vilamen act like a sponge, जैसे आप स्पॉन्ज, कोई भी आपके पास स्पॉन्ज का टुकड़ा होता है तो आप उसमें गीला करते, कितनी देर तक गीला रह जाता है, ठीक है, डनलप के गद्दे कुछ भी है उसमें स्पॉन्ज टाइप ही होते हैं, तो गीला हो गया तो गीले ही रह जाते हैं। तो ऐसे ये है इनके विलामेन में, विलामेन जो एक स्पेसिफिक टिश्यू है किसमें प्रेजेंट है, दैट इज इन द एपिफिटिक रूट्स। सो दिस विलामेन एक्ट लाइक ए स्पॉन्ज एंड इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से लेता पानी वगैरह सब कुछ, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सच रूट्स दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो हाइग्रोस्कोपिक भी पहले वर्ड आया हुआ है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या बताया था आपको, सेंसिटिव टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, सेंसिटिव टू द, अगर एयर में मॉइस्चर है तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो क्लियर हो गया कैसे ये अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो रूट्स हैं कौन, कितने एपीफाइट्स, दे हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ रूट्स, कौन कौन सी बताइए आपको, फर्स्ट एब्जॉर्बिंग रूट्स, सेकंड कौन सी बताई थी आपको, ये फिक्सिंग रूट्स, एंड थर्ड दे आर द एपिफिटिक रूट्स, जिनसे ये अपना सारा गुजारा करते हैं, एपिफिटिक रूट्स। सो दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, को किसकी हेल्प से, विलामेन की हेल्प से। विलामेन क्या, दैट एक्ट लाइक ए स्पॉन्ज and it is a hygroscopic in nature, so that's why it can absorb the moisture from the atmosphere. And epiphytic roots, it is a feature of some of the orchids, मैंने वर्ड यूज किया some of the orchid, क्योंकि ऑर्किड एक बहुत बड़ा ब्रांड समझ लो, ऑर्किड में बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ द प्लांट्स आर देयर, पर यहाँ ये सभी ऑर्किड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ऑर्किड जमीन के अंदर भी ग्रो करते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्किड सैप्रोफाइट, नियोशिया मैंने पहले आपको बताया हुआ है, तो वो भी ऑर्किड है, तो ये सभी ऑर्किड का फीचर नहीं है।
कौन से ऑर्किड्स? दैट ग्रो एज द एपीफाइट्स. सो ओनली द ऑर्किड्स ग्रोइंग एज द एपीफाइट्स, they have the epiphytic roots, right? So 3 types of the roots clear. इसमें 3 types बताया आपके, इनमें फिक्सिंग भी है, एब्जॉर्बिंग भी है. तो स्पेसिफिक इनमें कौन सी बनी? वो एपीफिटिक रूट्स है. तो विलामेंट टिश्यू किसमें प्रेजेंट है? वो एपीफिटिक रूट्स में प्रेजेंट है. तो यही विलामेंट जो अब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. Thick roots, I think you must have followed. And next we are taking, that is the assimilatory roots. Assimilatory. Assimilatory. Or we call them as the photosynthetic roots. Assimilatory or the photosynthetic roots. तो रूट्स के लिए ये बहुत कंट्रास्ट आपको लग रहा है कि रूट्स, और मैंने बिगनिंग में बताया था, इसका फीचर बताया था भाई ये तो नॉन ग्रीन होती हैं, और यहां मैं ही आपको बोल रही हूं कि दीज रूट्स दे आर द फोटोसिंथेटिक. assimilatory or photosynthetic roots are there. So obviously when we use the term photosynthetic, they must be working for the, or the having the function of the photosynthesis. They function for the photosynthesis. The photosynthetic roots you find in trapa, ट्रापम, संखाड़ा, वाटर चेस्टनट, जो कि पानी के अंदर होता है, तो ये इसको वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं. तो हमारे इधर पंजाब में हम लोग इसको संखाड़े के नाम से भी जानते हैं. तो ट्रापा में, और वेरी फैमिलियर एंड कॉमन नाउअडेज टाइनोस्पोरा. टाइनोस्पोरा जिसको आप गिलो बोलते हैं. गिलो इतना कॉमन कर दिया बाबा रामदेव जी ने आजकल. गिलो को सभी जानते हैं कि गिलो क्या है, क्योंकि हर मेडिसिन में कहते हैं कि गिलो. इवन कोरोना आजकल आ रहा है तो वो कहते हैं कि हाँ जी गिलो यूज करो. इतना ये अच्छा मेडिसिनल प्लांट है. तो गिलो में, तो ये टाइनोस्पोरा और दी गिलो, इसमें फोटोसिंथेटिक रूट्स आते हैं. तो कई बार आपने बड़े बड़े पेड़ों से ऐसे धागे से लटकते देखे होंगे, और मोस्टली ये धागे कब लटकते हैं? जब रेनी सीजन होता है. आप देखेंगे ना जून जुलाई का आएगा, तो जहां भी ये गिलो की बेल चढ़ रही होगी तो ऊपर से पेड़ों से कुछ रूट्स हैंग, ग्रीन कलर की रूट्स हैंग कर रही होंगी, ग्रीन कलर की. तो ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट है वो तो जमीन में रूटेड है, अपनी एब्जॉर्प्शन वहीं से ले रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स. तो सारी जो एब्जॉर्प्शन उन्हीं से चल रही है. अपना इसका रूट सिस्टम है. स्टेम इसकी वीक होती है, क्लाइंब कर जाती है दूसरे पेड़ों के ऊपर. तो जैसे रेनी सीजन आता है तो ऊपर से धागे जैसी निकलती हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, तो वो ग्रीन कलर की होंगी. तो बेटा वो फोटोसिंथेटिक रूट्स होंगी. उसका दूसरा नाम है असिमिलेटेड, बिकॉज दे हेल्प इन द असिमिलेशन. तो टाइनोस्पोरा, गिलो, एक और भी नाम है आपकी बुक्स में दे रखा होगा गर्चा. गर्चा, गिलो और गर्चा. तो टाइनोस्पोरा इसका बोटेनिकल नेम है. तो दीज फोटोसिंथेटिक रूट्स दे अपीयर ओनली इन द रेनी सीजन. दैट इज ट्रापा में तो होती हमेशा, ये एक्वाटिक प्लांट है तो इसमें भी प्रेजेंट होती हैं, पर आजकल ट्रापा में कंसीडर कर रहे हैं कि ये रूट्स नहीं है, ये तो भाई लीफ है, वो डिसेक्ट करके हमें वो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए वो उसको हम असिमिलेटरी रूट्स बोल देते हैं. तो गिलो में तो 100% कंफर्म है कि इसमें जो रूट्स निकलती हैं वो दे आर विद द फोटोसिंथेटिक रूट्स. सो दिस वाज अबाउट द असिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स. नेक्स्ट वी आर टेकिंग हस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स. हस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स, इसका भी रेफरेंस आया था पहले, हस्टोरियल और द पैरासिटिक रूट्स. सो दीज रूट्स, हस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स, so this we find in case of the cuscuta, which is example of the total parasite. In case of viscum, मैंने सेंटेलम भी बताया था आपको लास्ट टाइम. तो विस्कम एंड सेंटेलम, these are the example of the partial parasite. Partial parasite. Cuscuta, it is the example of the total parasite. तो हमारे इस एरिया में कस्क्यूटा बहुत ज्यादा कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन. तो ये सिटी में भी, कैंट में भी, तो कहीं भी आप जाएंगे कस्क्यूटा ये आपको मिलेगा. तो ये मोस्टली कहाँ, कौन से प्लांट्स है इसके जो रेलिश इसके होस्ट हैं, वो है इसके अकेशिया, किक्कर. किक्कर के ऊपर भी ग्रो कर जाता है, बेरी के ऊपर भी, जीजीफस, राइट. बोगनविलिया की बेल होती है उसके ऊपर भी चढ़ जाता है ये बोगनविलिया.
तो ये इनके रेलिश्ड होस्ट है। रेलिश्ड का मतलब ग्रो तो ये किसी के ऊपर भी कर जाता है, अगर इन प्लांट्स के ऊपर गिरे हैं तो बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाता है। तो ये कैसे उनकी लेता है, तो जैसे ये प्लांट है, ये उसकी स्टेम है, ये होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट है। तो होस्ट प्लांट के अराउंड ही ये ऐसे अपना ये सर्कल बना लेता है, ऐसे ये एक तरह का क्लाइंबर है, चढ़ जाता है इसके ऊपर। तो ये इसी के अंदर ये अपनी ये रूट्स देता है। इन्हीं रूट्स को हम बोलते हैं पैरासिटिक और सकिंग रूट्स। सकिंग रूट्स, इनको हम हस्टोरिया भी बोल देते हैं, हस्टोरिया। तो ये इन्होंने क्या किया, उनकी सप्लाई लाइंस के साथ कनेक्शन बना लिया। ये जो रूट्स हैं, सकिंग रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये नॉन ये कस्क्यूटा है, राइट। ये कस्क्यूटा चढ़ गया इसी के ऊपर, और इसका जो कलर होगा वो येलो होगा, ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन होगा तो अपना फूड खुद बना ले। ये है एंजियोस्पर्म है, पर अपना फूड खुद नहीं बना सकता। पैरासिटिक रूट्स इसलिए वो देता प्लांट के अंदर कि इनके कौन सी पैरासिटिक रूट्स, दूसरा नाम क्या मैंने इनको सकिंग रूट्स भी बोल देते हैं, हस्टोरिया भी बोल देते हैं। तो ये किनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, दे मेक कनेक्शन विद द सप्लाई लाइंस ऑफ द होस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। तो सप्लाई लाइंस कौन सी होती है उसकी, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के थ्रू आपको बताया था वाटर मिनरल साल्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और फ्लोएम के थ्रू रेडीमेड फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कस्क्यूटा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टोटल पैरासाइट, राइट। एंड इन केस ऑफ द सेंटेलम विस्कम, ये पार्शियल पैरासाइट है, पार्शियल पैरासाइट है। इनमें लीव्स भी हैं, ग्रीन लीव्स आर देयर। तो फिर हम लीव्स इनके भी हैं। सेंटेलम तो इतना बड़ा पेड़ है, मैंने बताया था, थिक फॉलिएज है, लीव्स भी हैं इनके। तो फिर ये क्यों इनको क्या जरूरत पड़ी, तो इनकी जो इनके जो रूट्स हैं वो वाटर मिनरल साल्ट्स अब्सॉर्ब नहीं करती, दूसरे प्लांट की रूट के साथ कनेक्शन बना देती है, ठीक है। तो पर किसके साथ कनेक्शन बनाएंगी, ओनली विद द जाइलम, नॉट विद द फ्लोएम। तो विस्कम और सेंटेलम में इसको दूसरा नाम क्या होता है, पार्शियल पैरासाइट है। दे मेक कनेक्शन ओनली विद द जाइलम ऑफ द होस्ट। तो ये भी ऐसे पैरासिटिक रूट्स देती हैं, बट दे मेक कनेक्शन ओनली विद द जाइलम। इस यहां क्या किया है उन्होंने, दे मेक कनेक्शन विद द जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। So this is the example of the total parasite, and centellum and viscum, they are the example of the partial parasites, right. So these are the historical of the parasitic roots, and remaining will be taking in the next lecture.